little secret, don't tell anyone, it's actually from Pathfinder. बोलना मत किसी। So you've actually solved a Pathfinder problem. तुम खुद भी सोच पाओ as you get more and more exposure to advanced problems. But this is the kind of questions that you must practice for JEE Advanced. Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with electrostatics for JEE 2027. Let's go. Let's start electrostatics with basic Coulomb's law. तो मेरे पास अगर सपोज दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 एंड ये पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, लेट्स से Q2 का विद रिस्पेक्ट टू Q1, then I can say that the force by 1 on 2, so the force by 1 Q1 on Q2 is given by K Q1 Q2 divided by R squared R cap. तो यहाँ पर जो K है that is a constant which is often written as 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is known as the permittivity of vacuum या free space. And ये बस एक constant है, ठीक है? तो K का वैल्यू कितना होता है? It is 9 into 10 to the 9 SI units में, which is SI units क्या होगा? Newton into meter squared divided by Coulomb squared. ठीक है? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे ये जो K का वैल्यू है वो हमें याद रखना है, 9 into 10 to the 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, and epsilon naught is called the permittivity of vacuum. Now notice here that Q1 Q2 if they are like charges, मतलब उनका साइन सेम है, then the product will be positive and therefore the force will be along R cap. What is R cap? R cap is the unit vector along the position vector. So force by Q1 and Q2 would be parallel to R vector, मतलब एक repulsive force हो जाएगा, right? If Q1 Q2 have the opposite signs, मतलब their product will be negative, तो force will be along minus R cap. Minus R cap मतलब इस direction में, R cap ये direction में, so minus R cap would be this way. So force on Q2 would be towards Q1. So basically this is something that just a mathematical way of saying the fact that like charges repel each other, unlike charges attract each other. ठीक है? All right. ओके, सो ये कूलम्स लॉ हमें ऑफ कोर्स याद रखना है. ऑलराइट, लेट्स डू अ नाइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. लेट्स लुक एट अ वेरी नाइस क्वेश्चन. मेरे पास 3 बीड्स हैं, स्मूथ बीड्स है, चार्जेस आर 16 माइक्रोकूलम, 9 and 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड अ सिंगल स्ट्रिंग गोज थ्रू ऑल ऑफ देम. एक सिंगल स्ट्रिंग है विच इज गोइंग थ्रू ऑल द बीड्स, ठीक है. टोटल स्ट्रिंग लेंथ कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर्स, एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है, ठीक है, नो ग्रेविटी. द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो रिपल्शन वगैरह होगा तीनों चार्जेस के बीच में वगैरह, उसके कारण वो इक्विलिब्रियम में है. एंड पूछा गया है दीज बीड्स आर ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो ईच साइड A B C, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, उसके वैल्यूज पूछे गए हैं. ओके, so let's do this question. तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स A plus B plus C is 13 सेंटीमीटर्स. एक ही स्ट्रिंग है, टोटल लेंथ 13 है, तो A plus B plus C is 13, वो तो पता चल गया. तो I need 2 equations, right? 2 more equations to get A and B, A B C. I need 2 more equations. So मैं कैसे करूँ? इक्विलिब्रियम है, so फोर्स बैलेंस करूँगा. ऑलराइट, so कोई भी एक चार्ज पकड़ते हैं, सपोज ये चार्ज पकड़ूंगा 9 माइक्रोकूलम. You have to understand what is the significance of this information. जब भी तुम JEE Advanced question solve कर रहे हो, then you should always be alert to every sentence that is written in the question, because every sentence will probably have some information that you have to use. यहाँ पे smooth beads है and एक single string है, इसका मतलब एक ही string है, तो tension in the entire string is same. All right, there is no friction, so there is no tension का change when the string is crossing the bead. Alright, अगर bead के पास friction होता है तो फिर tension suddenly change हो सकता है as the string crosses the bead, but यहाँ पर there is no friction, smooth beads है. So पूरे string में जो tension है वो same है, ठीक है, पूरे bead में tension same है. Alright, so now the equation, the approach to the question becomes very straightforward. Equilibrium है तो force balance करेंगे, ठीक है. So force balance करते हैं. So ये जो चार्ज है
9 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, हर एक पे एक फोर्स इक्वेशन में लिख सकता हूँ। तो कितने इक्वेशन बन जाएंगे? 3। एंड एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है, a + b + c इज 13 सेंटीमीटर्स। तो टोटल कितने बन गए इक्वेशन? 4 इक्वेशन एंड 4 अननोन्स है। टेंशन a b c, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? वी नो फिजिक्स इज, वी नो द फिजिक्स पार्ट। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशंस। सो कोई भी एक चार्ज पकड़ता हूँ, सपोज 9 माइक्रोकूलम पकड़ता हूँ, तो उसमें एक टेंशन T ऐसे लग रहा है और एक टेंशन T ऐसे लग रहा है, ठीक है? दिस इज द 9 माइक्रोकूलम चार्ज। एंड अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे, ठीक है? तो एक फोर्स ऐसे लगेगा K × 16 माइक्रोकूलम × 9 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय a², करेक्ट? एंड एक फोर्स 4 के कारण लगेगा, वो कितना बन जाएगा? K × 4 × 9 is 36, so K × 36 माइक्रोकूलम स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय b², ठीक है? दिख रहा है? एक फोर्स ऐसे लगेगा K × 36 माइक्रोकूलम स्क्वायर डिवाइड बाय b², सॉरी डिवाइड बाय c², एंड एक ऐसे लगने वाला है K × 16 × 9 डिवाइडेड बाय a². Now you might wonder कि we don't know the angle between them, right? We don't know the angles. How will we take the vector sum? We don't need to know the angle because जो भी forces है they are either along this line or this line. So जो ये TT का जो रिजल्टेंट है that must be exactly along इन दोनों का रिजल्टेंट, करेक्ट? अब ये TT का रिजल्टेंट तो मुझे पता है वेक्टर से कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स विल बाइसेक्ट. सो ये जो टेंशन T ये T है एग्जैक्टली उनके बाइसेक्टर के अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, करेक्ट? एंड देयरफॉर ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है उनका भी रिजल्टेंट उसी बाइसेक्टर के अलोंग होना चाहिए बिकॉज दे आर सपोज्ड टू कैंसल आउट द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन. सो दीज टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ टेंशन फोर्सेस मस्ट कैंसल ईच अदर आउट. सो दोनों का मैग्नीट्यूड अभी इक्वल होना पड़ेगा. दोनों मैग्नीट्यूड, अगर मैं F बोलूं, ये F बोलूं, they both should have, these are the electrostatic forces, they both should have equal magnitudes because their resultant must be along the bisector. ठीक है? So we didn't need to know the angle. This is why this is a JEE advanced level problem, not a JEE mains level problem. JEE mains में भी similar problem आ सकता है but उधर angle वगैरह दिया जाएगा तो तुमको बस force balancing करना है. This is JEE advanced. You had to deduce कि oh we don't need the angle because we had to deduce कि the resultant of tension will be along bisector. So resultant of these two must also be along bisector. But then that means कि their magnitudes are equal. Okay, and that's the difference between JEE mains and advanced. All right. तो इन दोनों का magnitude equal हो जाएगा. तो can I say one equation is 36 by c²? ठीक है, दोनों का magnitude equal कर रहा हूँ. Should be equal to 16 × 9. उसको वैसे ही रखता हूँ डिवाइड बाई a² क्योंकि कुछ कैंसिल करेंगे हम. ठीक है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं. ये कितना बन जाएगा? 9 × 4 4. सो मेरे पास a² by c² इज 4 आ जाएगा. सो a इज 2c आ जाएगा, करेक्ट? राइट. अच्छा, अब नाउ यू नो व्हाट हैज टू बी डन इन द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. क्या करें? कोई भी और दूसरा चार्ज पकड़ो. कोई दूसरा चार्ज पकड़ूंगा, सेम कॉन्सेप्ट. अगर मैं 16 माइक्रोकूलम पकड़ूंगा तो 16 माइक्रोकूलम पे एक टेंशन ऐसे लग रहा है और एक टेंशन ऐसे लग रहा है. रिजल्टेंट अगेन बाइसेक्टर के अलोंग होगा. तो इसका मतलब ये जो फोर्स और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उनका भी मैग्नीट्यूड वही होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, राइट? इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके रिजल्टेंट भी बाइसेक्टर के अलोंग होना पड़ेगा टू कैंसल आउट द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन एंड देयरफॉर देयर मैग्नीट्यूड्स मस्ट बी इक्वल. तो एक्चुअली सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है. जो भी नेबरिंग पेयर्स है, कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है बिकॉज़ ईच ऑफ देम हैज टू बैलेंस द टेंशन as we see. Okay, so it's very straightforward now. इन दोनों के बीच का कितना है? 16 × 4 डिवाइडेड बाय b², करेक्ट? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय b² should be equal to इन दोनों के बीच का. Basically I can just write it here itself. समझ में आया? सब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, so 16 × 4 डिवाइडेड बाय b². ऑलराइट, तो देखो ये इक्वेशन से क्या आ जाएगा कि b/a b² by a² इज 4/9 मतलब 2/3. ठीक है, सो b इज 2a/3. सो b इज 2a/3 मतलब a को मैं 2c लिखता हूँ तो 4c/3. ऑलराइट,
सिंपल। अब हो गया ना, अभी तो a प्लस बी प्लस सी 13 सेंटीमीटर तो मुझे पता ही है, तो करता हूँ a प्लस बी प्लस सी शुड बी 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज 13 सेंटीमीटर्स। तो देखो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 + 4 10 + 3 13, c/3 इज 13, तो c का वैल्यू 3 सेंटीमीटर्स हो गया, a का वैल्यू 2c 6 सेंटीमीटर्स एंड b का वैल्यू कितना गया 4c/3 सो 4 सेंटीमीटर। ओके, सो नॉट वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, फोर्स बैलेंस ही करना था, बट यू सी दिस इज द जेईई एडवांस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना था। ओके, बट देन कैलकुलेशंस आर इजी। ठीक है, सो इट्स अ नाइस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड इट। एंड अ लिटिल सीक्रेट, डोंट टेल एनीवन, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम पाथफाइंडर, बोलना मत किसी को। ठीक है, so you've actually solved a pathfinder problem right at the beginning of this lecture. तो I hope you understand कि बहुत difficult नहीं है, कि तुम खुद भी सोच पाओगे। As you get more and more exposure to advanced problems, you'll be able to think of these on your own. It's not too difficult. Okay, but this is the kind of questions that you must practice for JEE Advanced. देख लो। Now let's talk about potential energy between two charges. तो मेरे पास दो point charges है, let's say Q1 and Q2, and suppose ये R है, ठीक है, and I want to calculate the potential energy. तो मेरे पास जो फोर्स है वो कितना है, K Q1 Q2 by R square R cap. This is by 1 on 2, right? R cap इस सेंस में, ठीक है। now अगर मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन these two charges comes out to be K Q1 Q2 by R. ये हम याद रखेंगे। This is the electrostatic potential energy between two charges. All right, and इसको derive करना भी बहुत easy है। Basically, you should know that I can write F is minus du by dr. तो ये अपने वर्क पर एनर्जी चैप्टर से पता होना चाहिए तुमको कि the force between two charges I can write it as minus du by dr. तो इस इक्वेशन से फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, या उल्टा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स भी मिल जाएगा। ओके, all right, this is the radial component of the force. Radial मतलब along the line joining the two charges. All right, so ये मेरा potential energy है between two charges. Now one thing that I want to emphasize is that potential energy is defined for a pair of charges. इसका मतलब क्या है कि this is not the potential energy of charge Q1, this is not the potential energy of charge Q2, it is the potential energy of the interaction between Q1 and Q2. तो suppose मेरे पास, suppose I have let's say तीन चार्जेस ऐसे हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है, and let's say this distances are A, B and C. So if I want to write the potential energy of the system, तो मैं कैसे लिखूंगा, potential energy of Q1 and Q2, उसका इंटरेक्शन का potential energy I will write it as K Q1 Q2 by C, फिर Q2 Q3 का K Q2 Q3 by A प्लस Q3 Q1 का K Q3 Q1 by B। तो जितने पेयर्स है ऑफ चार्जेस उतने टर्म्स आएंगे पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के मन में काफी बार कि हर चार्ज का खुद का पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा नहीं। द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस, सो इट्स डिफाइंड फॉर एन इंटरैक्शन। कितने इंटरैक्शन है यहाँ पर, तीन पेयर्स ऑफ चार्जेस है, तो तीन टर्म्स आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के। ऑलराइट, अगर चार चार्जेस होते, इफ यू हैड 4 चार्जेस, देन कितने टर्म्स आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, 6, बिकॉज 4C2, 4 चार्जेस में इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन एंड 2 डायगोनल इंटरेक्शंस, राइट। सो यू विल हैव 6 टर्म्स, 6 पेयर्स ऑफ चार्जेस, 6 पॉसिबल इंटरेक्शंस, एंड देयरफॉर द सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी विल बी 6 टर्म्स। ऑलराइट, ठीक है। एक चीज यहां पर, हियर वी हैव मेड अ चॉइस, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस फोर्स टू गेट दिस, वी मेड अ चॉइस की पोटेंशियल एनर्जी 0 when the distance between the particles is infinite. This is a conventional choice and we stick to that. कुछ बोला नहीं गया तो we are going to use this choice, but this is still a choice. ठीक है, तुम कहीं और भी तुम potential energy 0 ले सकते हो. You can take potential energy to be 0 if the distance is something else. That is also fine. The physics will not change.
बट द स्टैंडर्ड कन्वेंशन इज दैट पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज इन्फिनिट. ओके, ये मेरा मैथमेटिकली कन्वीनियंट है. ऑलराइट, देख लो. लेट्स डू अ क्वेश्चन. मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, इसका चार्ज माइनस q है और इसका भी मास m है. सो लेट्स से माइनस q वाले को इनिशियल वेलोसिटी v नॉट देते हैं. द क्वेश्चन इज आस्किंग अस फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v नॉट such that distance between them, between the charges becomes infinite. ठीक है, ये इनिशियल डिस्टेंस लेट्स से कुछ r दिया हुआ है, तो ऐसा कितना मिनिमम वेलोसिटी v नॉट देना चाहिए such that the distance between them becomes infinite. So if you want you can give it a try. ये इनिशियली रेस्ट पर है और ये दिस इज फ्री टू मूव, द लेफ्ट चार्ज इज फ्री टू मूव. So give it a try. I suggest work in the frame of the center of mass. तो वो दोनों मोशन सिमेट्रिकल होगा, तो it will be easier to visualize. Try it out, then take a look on the solution. So center of mass के फ्रेम में देखो, पहले तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, v नॉट बाई 2 है ना. ये इनिशियली रेस्ट पर है और ये v नॉट है, m v नॉट डिवाइड बाई 2m. तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इट्स इजियर टू विजुअलाइज बिकॉज द मोशन विल बी सिमेट्रिक. दोनों का वेलोसिटी v नॉट बाई 2 टू द राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा, एंड दे विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड इवेंचुअली कम टू रेस्ट. सो वी वांट कि दे शुड जस्ट कम टू रेस्ट एट इन्फिनिटी बिकॉज मिनिमम स्पीड पूछा हुआ है. तो जब इन्फिनिट डिस्टेंस हो गया तब दोनों का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ इट्स प्रीटी इजी टू राइट. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितना वेलोसिटी है, कितना काइनेटिक एनर्जी है. वैसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर इधर से भी इजी है देखने को, हाफ m v नॉट बाई 2 द होल स्क्वायर इंटू 2. करेक्ट, शुड बी अच्छा प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर. आई एम कंजर्विंग एनर्जी एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो बिकॉज इनफिनिट डिस्टेंस हो गया. सो देयरफॉर तुमको डायरेक्ट v नॉट का वैल्यू आ जाएगा. देखो कितना आ जाएगा, v नॉट वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 4k क्यू स्क्वायर बाय mr. ठीक है, दिस इज द मिनिमम स्पीड दैट शुड बी गिवन सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स इन्फिनिट. देख, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. तो एक मेरे पास चार्ज है जो फिक्स्ड है एंड एक चार्ज है सेम चार्ज q मास m एंड उसको प्रोजेक्ट किया गया. लेट्स से q डैश बोल देता हूँ. दिस इज द डिस्टेंस b बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी, द लाइन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस पैरेलल लाइन गोइंग थ्रू दैट फिक्स्ड चार्ज. सो वेरी फार अवे, इट इज वेरी फार अवे, मतलब ऑलमोस्ट मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस, इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v, तो रिपेल करेगा. बोथ आर पॉजिटिव लेट्स से, बोथ आर लाइक चार्जेस, तो रिपेल करके ऐसे जाएगा, है ना. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड दिस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ठीक है, दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड चीज जो है दैट इज आस्किंग अस कि कितना एंगल ऑफ डिविएशन होगा. ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है डेल्टा, वो कितना होगा. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं अपन, व्हाट ऑल कैन वी कंजर्व, वी कैन कंजर्व एनर्जी एंड वी कैन ऑल्सो कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑफ q डैश अबाउट q. व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम एट एनी इंस्टेंट द फोर्स बाय q विल बी पासिंग थ्रू q. जो q डैश पे फोर्स लगेगा वो ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, करेक्ट. तो वो तो q के थ्रू ही जा रहा है ना, तो q के अबाउट टॉर्क जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट q, है कि नहीं. सो आई सजेस्ट ट्राई इट आउट, जस्ट राइट द इक्वेशन, नो नीड टू सॉल्व फॉर द फाइनल आंसर बिकॉज एक क्वाड्रेटिक आएगा तो सॉल्व तो कर लोगे, बट जस्ट ट्राई राइटिंग एन इक्वेशन, राइटिंग एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर q डैश इन ऑर्डर टू गेट r मिनिमम. ठीक है, वो ट्राई करो. ये वाला जो डेल्टा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं करता हूँ. पहले ये फर्स्ट पार्ट तुम ट्राई करो.
Alright, so energy conservation, initially distance infinity, so like I said वो infinity से release किया उसको project किया गया, ठीक है. तो initial distance between the charges is infinite, तो initial potential energy is 0, kinetic energy है half mv naught square, और यहाँ पर जो velocity है at the instant where the distance is minimum between the two charges, वो जो velocity है तो वो जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कितना हो जाएगा? इनिशियली एम वी नॉट इंटू बी, फाइनली एम वी आर मिनिमम. तो वी बिकम्स वी नॉट बी बाय आर मिनिमम, करेक्ट. एंड हाँ, नाउ वी कम बैक टू आवर एनर्जी कंजर्वेशन. तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा? See, यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस पे the velocity will be perpendicular to r minimum. If the velocity had a component along the line joining q dash and q, तो वो तो और कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा. यहाँ पर the velocity would be perpendicular to r minimum, ठीक है? Alright, so half mv naught square would be equal to, यहाँ पर कितना है? half m v square. I am conserving energy from infinity to this point. v मतलब ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे? के क्यू क्यू डैश बाय आर मिनिमम, ठीक है. तो ये यू कैन सी आर मिनिमम में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ऑलराइट, नाउ सेकेंड पार्ट इज अ लिटिल ट्रिकी. इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट, देन टेक अ लुक ऑन माय सॉल्यूशन. तो सेकेंड पार्ट के लिए लेट मी कंसिडर at some instant, let's say पार्टिकल यहां पर है, तो या फिर ये मेरा Q है, लेट्स से पार्टिकल यहां पर है एंड दिस एंगल इज लेट्स से फाई, ठीक है. तो इस Q डैश पे एक फोर्स लगेगा. वो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? इफ दिस डिस्टेंस इज r, द फोर्स वुड बी इक्वल टू k q डैश बाय r स्क्वायर, है कि नहीं? एंड उसका अगर मैं y कंपोनेंट देखूं, मतलब लेट मी से दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस, तो अगर उसका मैं y कंपोनेंट देखूं तो y कंपोनेंट जो है वो कितना हो जाएगा? f sin phi, करेक्ट. तो f sin phi क्या हो जाएगा? k q डैश बाय r स्क्वायर इनटू sin phi. नाउ r स्क्वायर आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट है ना, तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखूंगा तो थोड़ा सा इजियर हो जाएगा. मतलब वो दिखेगा, क्यों इजी होगा. सो एंगुलर मोमेंटम को मैं L बोल देता हूँ एंड दैट विल बी इक्वल टू m v नॉट b. आई कैन सब्स्टिट्यूट दैट लेटर ऑन. सो एंगुलर मोमेंटम कैन आई राइट इट एज, ये देखो कैसे, बिकॉज आई ओमेगा. सो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन डालना चाहिए बिकॉज फाई कम हो रहा है ना, सो डिफेबिलिटी नेगेटिव रहेगा, बट L इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो टू कीप इट पॉजिटिव आई हैव टू ऐड अ नेगेटिव साइन. सो f sin phi को मैं fy लिख सकता हूँ, y कंपोनेंट, एंड ये बन जाएगा k q डैश, और r स्क्वायर को मैं L बाय m डिफेबिलिटी लिखता हूँ विद नेगेटिव साइन. सो L और ऊपर आ जाएगा m sin phi d बाई dt, और dt को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चल जाता हूँ, ठीक है. सो ये क्यों किया मैंने? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज लाइक द इम्पल्स इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन, करेक्ट. एंड राइट हैंड साइड इज इजी टू इवेलुएट, इंटीग्रल sin phi d phi. तो लिमिट्स क्या लगेगा? दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं? सो चेंज इन मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन. इनिशियली तो कुछ मोमेंटम था नहीं वाई डायरेक्शन में. फाइनली सी इनिशियल जो मोमेंटम था, जो वेलोसिटी v नॉट था, फाइनली भी वही वेलोसिटी v नॉट होगा, बिकॉज इन्फिनिटी पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा. एनर्जी कंजर्वेशन पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वही फाइनली भी होगा. तो y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये डेल्टा एंगल है ना x एक्सिस के साथ इवेंचुअली, तो मोमेंटम का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? m v नॉट साइन डेल्टा.
सो आई हैव एम वी नॉट साइन डेल्टा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS पे क्या होगा, साइन फाई का लिमिट। नाउ फाई का वैल्यू इनिशियली जब पार्टिकल इज एट इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, तो फाई का वैल्यू इज 180 डिग्री एंड फाइनली फाई का वैल्यू विल बिकम डेल्टा, करेक्ट। सो माई लिमिट्स विल गो फ्रॉम पाई टू डेल्टा, ठीक है। तो आई हैव माइनस के क्यू क्यू डैश बाय एल एम कट गया, एम और ये एम कट गया, साइन फाई डी फाई, तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस फाई, तो बन जाएगा माइनस हट जाएगा 1 प्लस कॉस डेल्टा। देखो तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा साइन डेल्टा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस डेल्टा शुड बी इक्वल टू के क्यू क्यू डैश बाय एल वी नॉट, एंड एल को मैं लिख देता हूँ अभी एम वी नॉट बी, सो आई हैव एम वी नॉट स्क्वायर बी, ठीक है। हो गया, अभी डेल्टा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इसको हाफ एंगल में इजी हो जाएगा ना, साइन डेल्टा इज 2 साइन डेल्टा बाई 2 कॉस डेल्टा बाई 2, 1 प्लस कॉस डेल्टा इज 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, tan डेल्टा बाई 2। तो ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो दिस वाज अ लिटिल ट्रिकी, आई मीन इफ यू वांट टू डिराइव इट प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम इज प्रीटी डिफिकल्ट टू गेस कि अपन एफ साइन फाई लेके करेंगे तो हो जाएगा अपना, तो काइंड ऑफ जस्ट रिमेंबर द मेथड, ओके। देख लो, नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में इफ यू हैव अ चार्ज्ड बॉडी, लेट्स से ये कुछ चार्ज्ड बॉडी है, I bring a test charge here. So test charge is like a charge जिस पे अपन फोर्स कैलकुलेट करने वाले ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी। तो यहाँ से अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से दिस इसका चार्ज क्यू है, सो फोर्स सो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से पॉइंट पी पर, पॉइंट पी इज द पोजिशन ऑफ क्यू डैश, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू एट पी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन क्यू डैश divided by the test charge itself. So it's this the electric field will be independent of q dash because force में भी q dash का टर्म आएगा और नीचे q dash से कट जाएगा, ठीक है। So it's a property of the charged body, जो चार्ज जिसका q है उसी का प्रॉपर्टी है, एंड लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। So electric field at point P will depend on this charge and on the location and of course on the geometry of the object, ठीक है। So test charge is just like to test the electric field at that point, alright। So जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है, सपोज मैंने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझे, तो r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा मैं q डैश, उस पर कितना फोर्स लगता है, आई नो दैट k q q डैश बाय r स्क्वायर r कैप, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन q डैश वुड बी डिवाइड बाय q डैश k q बाय r स्क्वायर r कैप। So electric field rather at P लिखना चाहिए, this is produced by Q, so electric field due to point charge is K Q by R square R cap। तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शंस है वो सब ऐसे दिखेंगे along R cap, बट अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस R cap के along रहेगा because Q is negative, so the electric field lines will be going towards the negative charge, ठीक है। देख लो, let's do an example where we try to plot the electric field। तो जैसे कि मेरे पास suppose let's say यहाँ पर 1 कूलम है, यहाँ पे 4 कूलम है, and let's say 1 कूलम is at let's say x equal to 0 and 4 कूलम is at x equal to L, let's say ये L है, ठीक है। I want to plot electric field versus x, okay। तो ट्राई करो प्लॉटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज लुक फॉर इज कि कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो पहले लुक फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एंड देन ट्राई प्लॉटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लुकिंग एट द पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द चार्ज। तो ये 1 कॉलम के जस्ट राइट में, जस्ट लेफ्ट में, 4 कॉलम के जस्ट राइट में, जस्ट लेफ्ट में, लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट हैंड साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। तो जस्ट ट्राई
and then take a look at my solution. Okay, so सबसे पहले तो quickly let's figure out कि equilibrium position कहीं है क्या. Equilibrium मतलब electric field 0 कहीं है क्या. So 1 coulomb 4 coulomb. तो let's say x distance पे electric field 0 है, दोनों के बीच में electric field 0 होगा, है कि नहीं. तो वहाँ पर अगर electric field 0 हो गया, ये L minus x होगा. So can I say k into 1 divided by x square, magnitude of electric field should cancel out magnitude of 4 coulomb. तो L minus x the whole square should be equal to 4x square, यहीं पे स्क्वायर रूट ले लो. तो L by 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये मुझे पता चल गया. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द चार्ज. तो 1 कूलम के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी क्लोज टू इन्फिनिटी बिकॉज k³ by r स्क्वायर है, r इज टेंडिंग टू 0. तो 1 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो एंड पॉजिटिव, सो पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. सो 1 कूलम के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अवे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे. सो पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट. फिर 4 कूलम के जस्ट लेफ्ट में अगर देखो तो 4 कूलम के जस्ट लेफ्ट में अवे फ्रॉम द 4 कूलम चार्ज, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी. तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ठीक है. दिस विल बी L by 3, 0, मतलब उसका कोऑर्डिनेट L by 3, 0 होगा. अच्छा, फिर 1 कूलम के जस्ट लेफ्ट में 1 कूलम के the electric field will be pointing towards the negative x-axis because it is going away from the 1 coulomb. So negative infinity से शुरू करेगा, and very far away from the charges तो electric field 0 होता है, correct. And similarly 4 coulomb के just right में the electric field will be away, मतलब positive x-axis, so positive infinity से again going to 0. So this will be our electric field for this system. ठीक है, देख लो. Now let me look at another example. एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ. -1 कूलम कर दिया और अभी ये 4 कूलम है. ठीक है, एक्स एक्सिस है. नाउ प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एंड देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ओके, सो वंस अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढते. तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली करना है. द इक्विलिब्रियम पोजीशन और बेसिकली वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 वुड बी, where will it be? It won't be between -1 कूलम एंड 4 कूलम बिकॉज बीच में तो 4 कूलम के कारण लेफ्ट में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम 4 कूलम, -1 कूलम के कारण टुवर्ड्स -1 कूलम होगा, नेगेटिव चार्ज है ना. तो बीच में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाएगा. राइट साइड पे देखूंगा तो 4 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा रहेगा मैग्नीट्यूड में कंपेयर टू 1 कूलम, बिकॉज 4 कूलम का डिस्टेंस छोटा है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द राइट साइड एंड चार्ज भी ज्यादा है 4 कूलम का, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली हमेशा ही ज्यादा रहेगा -1 कूलम का. दैट लीव्स अस विद ओनली वन रीजन somewhere to the left of -1 कूलम. तो वहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस कुछ let's say ये L है, let's say L डैश है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो -1 कूलम के कारण टुवर्ड्स -1 कूलम होगा, टुवर्ड्स द राइट कितना हो जाएगा, k मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो k into 1 divided by L dash square should balance out the electric field into 4 कूलम. यहाँ पर वो लेफ्ट में होगा away from 4 कूलम, so that will be k into 4 divided by L plus L dash the whole square. ठीक है. तो स्क्वायर रूट ले रहा हूँ डायरेक्ट. L प्लस L डैश इज इक्वल टू 2L डैश, सो L डैश इज इक्वल टू L. सो इसका मतलब वंस अगेन आई एम टेकिंग द ओरिजिन एट -1 कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करते हैं. तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पे मेरा 4 कूलम है, ये -1 ये 4 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0. ठीक है, तो अभी प्लॉट करते हैं. 4 कूलम के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम 4 कूलम एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू करेगा दैट फॉर गोइंग टू 0. ठीक है, फिर 4 कूलम के जस्ट लेफ्ट में पॉइंट करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी से. अब -1 कूलम के जस्ट राइट में वो भी लेफ्ट में पॉइंट करेगा. इट वोंट कट द एक्स एक्सिस बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो है नहीं, वो पर अपने को पता है. एंड 1 कूलम के जस्ट लेफ्ट में द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग टुवर्ड्स -1 कूलम, सो पॉजिटिव इन्फिनिटी.
and it will cut the x-axis because वो equilibrium वो electric field zero वाला point है, and then ultimately it will go to zero. Very far away on either side from the charges, positive infinity पे या फिर negative infinity पे electric field has to be zero. ठीक है, because kq by r square है ना, r tending to infinity, field goes to zero. तो ऐसा मेरा this will be my graph. ठीक है, देख लो. अच्छा, sometimes the question asks you कि यहाँ पे जो -1 कूलम 4 कूलम था, वी सॉ कि अगर ये L है तो L डिस्टेंस टू द लेफ्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. वहां पर अभी एक चार्ज रखा तो उसका ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट हाउ विल दैट इक्विलिब्रियम बी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट इक्विलिब्रियम इफ यू डिस्प्लेस दैट चार्ज slightly along the x-axis? Will it be stable, unstable? So one way is to write a general force on the charge at a general x and then check the slope. dF by dx negative होगा तो stable होगा, positive होगा तो unstable होगा. The other way is to quickly plot the graph. अब ग्राफ प्लॉटिंग, ये जो यहाँ पे -1 कूलम था, यहाँ पे 4 कूलम था, अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन तो पता है इधर है. सो 1 कूलम के जस्ट लेफ्ट में ऐसा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, -1 कूलम के जस्ट लेफ्ट में. तो ऐसा कुछ जाएगा मेरा ग्राफ, करेक्ट. तो इफ यू कैन क्विकली प्लॉट द ग्राफ देन इट इज वेरी इजी टू सी कि यहाँ पर dE by dx इज पॉजिटिव, करेक्ट. So if you place the charge and if that charge is positive also, the force is q dE by dx, or dF by dx is q dE by dx, therefore which will be positive, so that will be unstable. अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो ये क्वांटिटी dF by dx नेगेटिव हो जाएगा, तो that will be stable. This is for displacement along the x-axis. ठीक है, तो graph is a quick way to check the stability of the equilibrium. देख लो. Now let's look at electric field due to continuous bodies, extended charges. तो सबसे पहले circular arc की बात करते हैं. तो suppose circular arc है, lambda is the charge per unit length, uniform है. तो उसका जो electric field आता है, अगर lambda positive मानो तो the field will be away from the charge. Let's say this angle is alpha. The electric field comes out to be 2k lambda by r. So we are calculating the electric field at the center of curvature of the circular arc. So r is the radius of the radius of curvature of the arc. Sine of ये आता है, ठीक है, ये अपन याद रखेंगे. And obviously by symmetry the electric field will be along the bisector. ठीक है. So इस पर क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास एक सेमी सर्कल है, लैम्डा चार्ज दिया हुआ है और एक चार्ज रखा हुआ है. लेट्स से इसका भी चार्ज Q दिया हुआ है, ये R है. फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेमी सर्कल एंड द पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर. ठीक है. सो बेस्ट वे इज टू राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कल एट द पॉइंट चार्ज, एंड माई फोर्स, लेट्स से Q dash है. Force would simply be Q dash into electric field due to the ring, due to the semi ring, correct? Electric field का definition क्या था? Force on the test charge divided by test charge. So this Q dash is like the test charge. तो उस पर force निकाला तो electric field multiplied by the test charge. ठीक है? तो try करो, then take a look at my solution. Okay, so ये इस expression में बस अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री डालना है कि नहीं, तो ये साइन 90 बन जाएगा, तो 2k lambda by r बचेगा बस. सो फोर्स वुड बी Q dash into 2k lambda by r, बिकॉज अल्फा पाई हो गया ना, एंड लैम्डा का वैल्यू Q by pi r. सो 2k Q dash by lambda here is Q divided by the circumference. ठीक है, देख लो. Now let's look at a line wire. मेरे पास एक लाइन वायर है, और ये पॉइंट P है यहाँ पर, जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. Let's say this angle is alpha, this is beta, measured from the perpendicular, and the perpendicular distance को r बोलते हैं. ठीक है. Lambda is once again the charge per unit length of the line wire. So इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. So let me take my axis xy ऐसे. So electric field in the x direction comes out to be k lambda by r sine alpha plus sine beta, and y direction where it comes out to be k lambda by r cos alpha minus cos beta. तो once again अपन ये
याद रखेंगे, ठीक है। हियर वी हैव टू रियलाइज कि सपोज लेट्स से ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, वी आर मेजरिंग अल्फा एज पॉजिटिव इफ पॉइंट ए इज अबव पी, एंड बीटा इज पॉजिटिव इफ पॉइंट बी इज बिलो पी। वो मेरा कन्वेंशन है, उसी कन्वेंशन के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया। सो सपोज ऐसा सिचुएशन आया, सपोज ऐसा सिचुएशन है, लेट्स से दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 15 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट पी है और ये आर होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लैम्डा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला ऑब्वियसली यूज करूंगा, फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला तो सिंपल है, बट जो सब्स्टिट्यूट करना है, बट अल्फा बीटा का वैल्यू केयरफुली लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा एंड बीटा मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ अल्फा, व्हाट शुड आई टेक? A in this case is below P, so alpha is positive, A is above P, so A अगर below है तो alpha negative होगा, so here I have to take alpha as minus 30 डिग्री, ठीक। एंड B तो below P ही है, B जब below P था तभी अपन ने कन्वेंशन लिया था कि बीटा पॉजिटिव है, so अभी बीटा पॉजिटिव होगा, बट बीटा विल बी हाउ मच? मेजर्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर, so 45 डिग्रीज। तो फॉर्मूला में द इक्वेशन में अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। अल्फा शुड बी -30, बीटा शुड बी +45। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, ठीक है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस लाइन वायर इज दैट कहीं भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं डायरेक्शन देखूं, it will bisect the angle subtended by the ends of the line wire at that point, ठीक है। तो ये तुम प्रूव कर सकते हो EY by EX लेके, you can get the angle and then you can show it is equal, so I'll leave that proof up to you, but we'll just remember that this electric field bisects this angle, ठीक है। तो sometimes अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा हुआ है, ये 60 डिग्री है सपोज, तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक 30 डिग्री, ये 30, ये 30, ठीक है। देख लो, अब ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमें एक फाइनाइट होलो सिलेंडर दिया गया है and we want to find the field on its axis, right? So it's not infinite, it is finite of height h, radius r, and उसके center से, this is h by 2, so center से z distance पे, let's say this is the z axis, center से z distance पे I want to find the field, alright? तो one way of doing this is by considering lots of infinitesimal rings, but the better way is to imagine lots of infinitesimally thin strips. ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर है, तो कैन आई इमेजिन दिस टू बी मेड अप ऑफ ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स, करेक्ट। तो पूरे सरफेस को मैंने ऐसे स्ट्रिप्स की तरह स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, इन्फिनिटेसिमली थिन, ठीक है। एंड I did this because मेरे पास finite line wire, उसका फील्ड मुझे पता है, so now it will be very straightforward because हर एक स्ट्रिप के diametrically opposite दूसरा स्ट्रिप है, so can you see that the x component will just cancel out, जो बचेगा वो बस y component बचेगा, y मतलब यहाँ पे z component है, जो बचेगा फील्ड वो सिर्फ z डायरेक्शन में बचेगा, करेक्ट। सो कोई भी एक स्ट्रिप है, लेट्स से उसका चार्ज dq है, ठीक है। तो कोई एक स्ट्रिप अगर है मेरे पास यहां पर, सो लेट्स से ये पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट P एंड आई वांट टू फाइंड द फील्ड एट P, ठीक है। दिस स्ट्रिप हैज हाइट h एंड z इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो
दिस इज जेड, दिस इज एच बाई टू। स्ट्रिप का जो हाइट है वो एच है, करेक्ट। सो मुझे पी पे फील्ड निकालना, तो कैसे करूंगा? ऑल आई नीड इज द एंगल्स अल्फा एंड बीटा। लेट मी जस्ट कनेक्ट द एंड्स, ठीक है। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड you should be able to see only इस डायरेक्शन में होगा फील्ड। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट, वो तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो स्ट्रिप्स है दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, तो बचेगा सिर्फ जेड डायरेक्शन में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? आई हैव लैम्डा के लैम्डा बाय आर इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। आर मतलब रेडियस, दिस इज द डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड अल्फा बीटा एंड लैम्डा ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये करते हैं अपन। तो सबसे पहले अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज दिस हाइट, सो इफ आई से a and let's say this is let's say m, so if I look at the triangle AMP, तो ये एंगल अल्फा है, करेक्ट। ये कितना है? r। ये कितना है? दिस हाइट इज h by 2, so AM कितना हो जाएगा? h by 2 minus z, करेक्ट। सो cos अल्फा कितना बन जाएगा? cos अल्फा वुड बी r divided by hypotenuse which would be r square plus simple. Similarly cos बीटा क्या बन जाएगा? कैन यू सी cos बीटा वुड बी r divided by this which would be ये हाइट कितना है? अगर b बोलो तो mp कितना है? z plus h by 2, राइट। So cos beta would be r square plus z आ जाएगा यहाँ पर, ऑलराइट। सो cos अल्फा cos बीटा आ गया, बस बचा है लैम्डा। अभी लैम्डा कैसे निकालें? ये मैंने लिखा है एक स्ट्रिप के लिए, करेक्ट। नाउ लैम्डा इज नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। एक स्ट्रिप के लिए लैम्डा इज dq by h। Now how much is dq? अगर इस स्ट्रिप का थिकनेस, ये जो स्ट्रिप है मेरे पास, उसका अगर मैं थिकनेस dl बोलूं, ठीक है, ये वाला स्ट्रिप कंसीडर किया, उसका थिकनेस में dl बोलता हूं, तो dl इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग ये छोटा सा dl है। सो कैन आई से dq वुड बी, क्वेश्चन में सिग्मा दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया दिया गया है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। So sigma into the surface area of this strip, which would be how much? H into dl, ठीक है। स्ट्रिप का हाइट h है, थिकनेस dl है, तो एरिया कितना? h into dl इंटू सिग्मा करूंगा तो मेरे पास चार्ज मिल जाएगा, बट देन आई हैव टू डिवाइड बाय h in order to get charge per unit length, and therefore this would become simply sigma dl, all right। So therefore my electric field, this was due to one strip, but now the net electric field I'll have to integrate, so k by r and lambda को मैं sigma dl बोलता हूँ, ठीक है, into cos alpha minus cos beta भी वही वैसे ही रखता हूँ, I can substitute it later on. You notice that this integral is over dl, so we are integrating the field of all the strips. For all the strips, r is a constant, h is a constant, z is a constant. z मतलब location of point p है, point p तो एक fixed point है अभी के लिए, हर स्ट्रिप के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे, पॉइंट पी तो वहीं का वहीं है, सो z का वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। सो व्हेन आई एम इंटीग्रेटिंग द ओनली, देयर इज नो वेरिएबल एक्चुअली, वी आर ओनली इंटीग्रेटिंग ओवर dl, दैट्स इट। एंड व्हाट इज इंटीग्रल dl? द सर्कमफ्रेंस 2 pi r, एंड देयरफॉर बहुत ही सिंपल हो गया, k सिग्मा बाय r कांस्टेंट बाहर आ गया, cos अल्फा माइनस cos बीटा भी बाहर आ गया, उसको मैं वैसे ही लिखता हूं, एंड इंटीग्रल dl कितना बन जाएगा? 2 pi r, ठीक है। वी आर डन, अभी बस सब्स्टिट्यूशन करना है, ऑलराइट। तो कर लेता हूं, चलो। k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं जस्ट टू मेक इट अ लिटिल गुड लुकिंग, बिकॉज ये 4 पाई 2 पाई कट जाएगा, r कट गया, तो ये बचेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब cos अल्फा cos बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, r कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा अंदर 1/r स्क्वायर प्लस h by 2 minus z the whole square minus 1/r square plus, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ऑलराइट।
So it's quite straightforward if you use the field of a line wire. If you use the field of a ring, तो थोड़ा इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा. So that is what we have avoided here. All right. तो ये मेरा फील्ड आ गया एज अ फंक्शन ऑफ z. जस्ट चेक कर लो मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया सब्स्टिट्यूशन वगैरह में. ठीक है, देख लो. अच्छा, इन्फिनिट वायर की बात करते हैं. सो मेरे पास जैसे वी ऑलरेडी फाउंड आउट द फील्ड एट अ जनरल पोजिशन, बट अगर वायर को इन्फिनिट कर दे तो मतलब अल्फा एंड बीटा विल बोथ टेंड टू व्हाट, π/2. करेक्ट. सो कैन यू सी ई वाई तो जीरो हो जाएगा बिकॉज कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों जीरो हो जाएगा, एंड ई एक्स बेसिकली ई बचेगा 2k लैम्डा बाय आर. साइन अल्फा साइन बीटा दोनों 1 हो जाएगा. ठीक है. सेमी इन्फिनिट मतलब वन एंड इज नोन टू अस एंड द अदर एंड इज एट इंफिनिटी. पॉइंट पे यहां पर है, यहाँ पे अल्फा विल टेंड टू 90 डिग्री एंड बीटा विल बी नोन टू अस. तो कुछ फॉर्मूला में अल्फा को 90 रख देना, बीटा विल बी गिवन टू. ओके, देख लो. लेट्स लुक एट रिंग. तो इसका चार्ज Q है, रेडियस R है. सो यहाँ पर इट टर्न्स आउट कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ऑन इट्स एक्सिस ही बात कर रहे अपन, KQX डिवाइड बाय R² प्लस x² रेज़ टू 3/2. दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो y एंड z कंपोनेंट जीरो हो जाएगा. तो बाई सिमेट्री दिख रहा है कि ये जो चार्ज है उसका रिजल्टेंट सिर्फ अलोंग द सिमेट्रिकल एक्सिस आएगा फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. ठीक है. बट नॉन यूनिफॉर्म रिंग के लिए वी कैन कैलकुलेट EX. ये एक्चुअली विल बी एबल टू डू इट यूजिंग पोटेंशियल. पोटेंशियल अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो उससे ये डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर लेंगे तभी. ठीक है. अच्छा, नाउ Q is obviously the radius, capital R is Q is the charge and capital R is the radius. Here electric field का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो एक मैक्सिमा आता है. See x equal to 0 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, and x going to infinity पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिख रहा है. लिमिट ले लो, तो एक मैक्सिमा आता है. वो आता है r/√2 पे. दैट यू कैन जस्ट यूज कैलकुलस टू गेट द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमा ऑन योर ओन. ठीक है, बट वो अपन थोड़ा याद रखेंगे. ऑलराइट, देख लो. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ क्वेश्चन दैट कंबाइंस SHM एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो मेरे पास एक रिंग है, लेट्स से फिक्स्ड रिंग. रिंग का चार्ज Q है और ये एक पॉइंट पर्टिकुलर, इसका मास M है एंड चार्ज -Q है. उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज्ड अलोंग द एक्सिस. तो पूछा है फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस. तो ये SHM करेगा क्या, वो पहले चेक कर लेते हैं. सी मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो फोर्स कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एट अ डिस्टेंस x, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQX डिवाइड बाय R² प्लस x² रेज़ टू 3/2 इनटू मैग्नीट्यूड. करेक्ट, electric field into charge. So for small x, I can say ये x² निगलेक्ट कर दिया कंपेयर टू r. ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू x आ गया. तो ये मेरा SHM बन गया. दिस इज माय K इक्विवेलेंट. ठीक है. सो ओमेगा वुड बी K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय मास. राइट. Suppose this ring were also free to move. तो क्या होता, तो इट वुड बी टू बॉडी SHM. सोचो, तो अगर रिंग का मास अभी m डैश दिया हुआ है, तो यू विल बेसिकली हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज K इक्विवेलेंट बाय म्यू. तो ये मेरा K इक्विवेलेंट है, वो सेम ही रहेगा, बट m की जगह भी म्यू आ जाएगा.
और रेड्यूस मास तो मुझे पता है, m और m डैश का रेड्यूस मास यू नो हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है। देख लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक रिंग है एंड अब एक रॉड है, थिन रॉड है ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, चार्ज है, रॉड भी चार्ज है, रिंग भी चार्ज है, रिंग फिक्स्ड है, रिंग पे चार्ज लेटर क्यू एंड रॉड पे चार्ज माइनस क्यू, और रिंग का रेडियस आर और रॉड का रेडियस 2r। तो इनिशियली सिमेट्रिकली रखा हुआ है रॉड एंड देन यू स्लाइटली डिस्प्लेस इट अलोंग इट्स एक्सिस। तो पूछा गया फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है, ट्राई करो। तो इसमें लेट्स से x से डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो सी लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ पे पहले फोर्सेस बैलेंस थे। द रिंग वाज अट्रैक्टिंग द लेफ्ट हाफ एंड अट्रैक्टिंग द राइट हाफ एंड द फोर्सेस वर बैलेंस्ड। नाउ एज यू शिफ्ट द रॉड टू द राइट, तो यहाँ पे जो एक x पोर्शन था रॉड का वो निकल गया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा x पोर्शन आ गया, करेक्ट। सो देयरफॉर इट इज एज इफ कि मेरा इसके कारण जो फोर्स लगा रहा था वो हट गया और इसके कारण जो फोर्स एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, इसके कारण कितना होगा, इट्स एट अ डिस्टेंस, वो स्मॉल है तो आर पे ही मान सकते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा के क्यू एक्स, ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स की जगह आर रखता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह आर इंटू, अब इसका चार्ज कितना होगा, मेरे पास पूरे 2r लेंथ में चार्ज माइनस क्यू है, तो x, ये x लेंथ का चार्ज कितना है, 2r में माइनस क्यू है, तो x का कितना है माइनस क्यू बाई 2r इंटू एक्स, करेक्ट। सो मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, ठीक है, ये इसके लिए। तो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर इतना आ गया और यहाँ पे जो फोर्स बैलेंस करने के लिए इतना हाफ का बैलेंस हो रहा था उसमें से ये हट गया, उसका मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली इतना ही है, सोचो, बिकॉज वो भी डिस्टेंस आर पर है, एक्स अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड इज मिसिंग, सो इनटू 2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। पहले बोथ हाफ्स पे फोर्सेस वर बीइंग बैलेंस्ड। नाउ अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो यहाँ से एक पीस हटा दिया मैंने, तो लेफ्ट में फोर्स बढ़ गया और फिर वही पीस को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो और भी बढ़ गया, दोनों के कारण जो फोर्स है वो सेम है मैग्नीट्यूड में, तो डबल हो गया, ठीक है। सो वंस अगेन you can see that force is proportional to x, so it is SHM। और हाँ, रॉड का मास देना चाहिए था, तो फोर्स देखो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 2r क्यूब, सो 2√2 r क्यूब बन जाएगा, ये 2 कट गया, मतलब k क्यू स्क्वायर x और ये r कट गया, 2√2 r क्यूब, ठीक है। तो मेरा k इक्वलेंट बन गया k क्यू स्क्वायर बाई 2√2 r क्यूब एंड देयरफॉर ओमेगा वुड सिंपली बी रूट k इक्वलेंट में मास, m इज द मास ऑफ द रॉड, ठीक है, देख लो। Now let's look at a very interesting application of the field of a ring to a case जहाँ पे it's not obvious कि तुम वो field of a ring यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो बेसिकली मेरे पास एक hollow cylinder है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका दिया गया है सिग्मा, मतलब सरफेस पर चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। एक पॉइंट चार्ज है विच इज केप्ट एट द सेंटर, ठीक है, हाइट h है, रेडियस r है, इट्स केप्ट ऑन द एक्सिस एट द सेंटर एंड द सिलेंडर इज पॉजिटिवली चार्ज, द पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, ओके। अब पूछा गया है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अलोंग द एक्सिस। तो इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो कैसे ऑसिलेट करेगा, इसका मास भी m दिया गया है, ये सिलेंडर फिक्स्ड है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया अलोंग द एक्सिस, आई वांट टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस, ऑलराइट। सो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Now the standard way that you might think of is कि पहले तुम पूरे सिलेंडर का फील्ड निकालोगे along the axis, then you will displace the charge by a small amount, then make some binomial approximations to get the field at that location, then get the force and फिर SHM, right? So that is a standard method, that's correct and will give you the correct answer. But ये सब करने में बहुत टाइम जाएगा because you'll have to first integrate to calculate the field of the hollow cylinder,
है ना, which we can, but there is no need because there is a very cute and elegant method इस टाइप के क्वेश्चन में. देखो ध्यान से देखना, मेरे पास एक होलो सिलेंडर है यहाँ पर, ठीक है, एंड पॉइंट चार्ज इनिशियली सेंटर पे है, तो ऊपर से h/2 नीचे से h/2 पे, करेक्ट. नाउ इफ आई डिस्प्लेस इट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस y, तो ऊपर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा अभी वो h/2 माइनस y, करेक्ट. सो consider a cylinder of height such that the charge, जो न्यू लोकेशन पे जो चार्ज है, now that is at the center of that cylinder. मतलब क्या, ये हाइट h/2 माइनस y, ये भी हाइट h/2 माइनस y, तो टोटल कितना बन जाएगा h माइनस 2y. ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग दिस सिलेंडर इनटू, ये पूरा हाइट तो h है, उसमें से आई एम इमेजिनिंग कि ये h माइनस 2y का सिलेंडर है, और नीचे कितना बचा, नीचे 2y, टोटल h बन गया. क्या किया मैंने, आई हैव डिवाइडेड दिस सिलेंडर ऑफ हाइट h इनटू टू पार्ट्स. वन इज h माइनस 2y, द अदर इज 2y. व्हाई हैव आई डन दिस, बिकॉज ये जो h माइनस 2y है, इस पूरे सिलेंडर के कारण इस चार्ज पे फोर्स 0 हो जाएगा एट द न्यू लोकेशन. व्हेन यू डिस्प्लेस द चार्ज बाय डिस्टेंस y अलोंग द एक्सिस, ये जो नया सिलेंडर, ये जो इतने पोर्शन ऑफ द सिलेंडर है h माइनस 2y, उसके कारण फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 0 नाउ. तो बचेगा किसके कारण, बस इतने से स्ट्रिप के कारण. सो अल्टीमेटली द फोर्स ऑन द चार्ज इज ओनली ड्यू टू द स्ट्रिप. सो दिस इज लाइक अ रिंग ऑफ थिकनेस 2y. ठीक है. और ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, नीचे से डिस्टेंस कितना बन जाएगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्मॉल, द y इज वेरी स्मॉल. तो देखो नीचे से डिस्टेंस कितना बन जाएगा, दिस विल बी h/2 प्लस y, बट उसको मैं अप्रोक्सीमेटली h/2 ही लिख सकता हूं, क्योंकि दिस y इज वेरी स्मॉल. ऑलराइट, आई डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट मैं ऊपर से ले रहा हूं कि नीचे से ले रहा हूं कि इसके सेंटर से मेजर कर रहा हूं, बिकॉज वो सब जो थिकनेस y है बहुत छोटा है, क्योंकि हमने ही बोला ना स्मॉल ऑसिलेशंस. ऑलराइट, सो द ओनली फोर्स दैट विल अपीयर ऑन दिस चार्ज व्हेन यू डिस्प्लेस इट बाय y विल बी ड्यू टू दिस रिंग बिलो. बाकी पूरे सिलेंडर के कारण वहां पे फोर्स 0 हो चुका है, बिकॉज बाकी पूरे सिलेंडर के भी सेंटर पर है चार्ज. ऑलराइट, एंड इस रिंग का फील्ड तो मुझे आता है लिखना. अगर इसका कुछ चार्ज, इसका जो चार्ज है उसको मैं कुछ Q बोलूँ, कैपिटल Q बोलूँ, तो यहाँ पे फील्ड कितना बन जाएगा, इस पे जो फील्ड होगा दैट वुड बिकम KQ इंटू दिस हाइट विच इज h/2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r दिया गया है, प्लस करेक्ट KQX डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेशियो 3/2. x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज h/2. ठीक है. अब यहां पर कैपिटल Q का वैल्यू क्या लिखूं मैं, कैपिटल Q इज द चार्ज ऑफ द रिंग, सो दैट वुड बी सिग्मा इनटू द सरफेस एरिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज हाउ मच, दैट वुड बी 2 pi r इनटू 2y, सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस. ठीक है. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, दिस बिकम्स सिग्मा इंटू 2 pi r, k को मैं 1/4 pi epsilon naught लिख लेता हूँ, चलेगा. सो सिग्मा इंटू 2 pi r इंटू 2y इंटू h/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है. तो ये 2 एंड ये पाई और ये 4 pi कट गया, देखो क्या बचेगा, सिग्मा बाय 2 epsilon naught RH डिवाइडेड बाय, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है. ऑलराइट, एंड y, ये वाला y. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स नाउ दिस टेल्स अस कि SHM है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू y, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रिंग के कारण ऊपर है, बट पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, नीचे की तरफ है. सो माय फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द रिस्टोरिंग फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, कितना बन जाएगा, Q इंटू दिस, करेक्ट. सो सिग्मा RH डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught into r square plus h square by 4 raised to 3/2 into mod q into y. मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, इसलिए mod q डाल दिया, वैसे q नेगेटिव है. ठीक है. ओके, सो कैन यू सी दिस इज लाइक इक्वल टू k into y.
where k is my k equivalent लिखता हूँ, like SHM वाला k, all right, and therefore my time period would be 2 pi root m by this k equivalent, all right. So it's a beautiful question which involves the field of a ring without having to do any integration, because standard method में student बहुत time waste करेंगे, पहले पूरा field निकालेंगे hollow cylinder का on the axis, फिर binomial approximation use करेंगे, and then they will arrive at the correct answer if you do it carefully. वहाँ पे भी mistakes होने के chances है, but now you know the elegant method, the very cute method कि symmetry से थोड़ा सा displace किया तो ये वाले सिलेंडर, इतने पोर्शन वाले सिलेंडर h-2y लेंथ के सिलेंडर का फील्ड पूरा ही 0 बन गया, बचा हुआ 2y थिकनेस का, बस तुमको यहाँ पे रिंग का फील्ड यूज करके फोर्स कैलकुलेट करके SHM बताना, ऑलराइट. सो कीप दिस अप्रोच इन माइंड व्हेन यू आर टैकलिंग such sort of similar questions, ऑलराइट. देख लो. नाउ लेट्स लुक एट द फील्ड ऑफ अ डिस्क. तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, सो ऑन इट्स एक्सिस ये एंगल जो सबटेंडेड है उसके टर्म्स में फील्ड इज इजी टू राइट. सिग्मा लेट से इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, तो माय फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये अपन याद रखेंगे, ठीक है. एंड इनफाइनाइट शीट के लिए इफ यू जस्ट अज्यूम कि द डिस्क को एनलार्ज कर दिया सच दैट इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो थीटा विल टेंड टू पाई बाय 2, so electric field will become sigma by 2 epsilon naught, all right. तो ये constant field है, so constant field is produced by this infinite sheet. मेरे पास infinite sheet रहेगा. see infinite sheet का shape doesn't matter because infinity है, तो तुम disk को enlarge कर सकते हो या कोई और shape के sheet को भी enlarge करके tending to infinity करोगे तो same ही field आएगा. तो यहाँ पर electric field sigma by 2 epsilon naught, this is for an infinite sheet, ठीक है.